So this is going to be my last lecture series for all of you. तो ये लास्ट 4 days में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मेरा ऑफिस में बन के मैंने बनाया है, तो फॉर ऑल ऑफ यू, तो आई जस्ट होप दैट इट हेल्प्स यू. सो विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट आज का जो हमारा सीरीज़ को. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वेयर वी हैव लेफ्ट यस्टरडे. I'm going to be very brief. I'm not going to talk in details. Just see that these are the decision issues and it might be asked in the question. It might be asked in the exam. So the most important SUMP 11,500 मेगावाट का डैम, इसके ऊपर में पढ़िए. When I say SUMP डैम, बहुत सारे डैम है जो अरुणाचल में बन रहा है, लाइक जो दिबांग में जो बन रहा है, जो अंजाव में बन रहा है, जो कामले में बनने जा रहा है, जो अपर सुबनसिरी में काफ़ी डैम का चल रहा है. सो दी स्टूडेंट्स माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एनी ऑफ दी डैम्स दैट इज बीइंग प्रपोज्ड और दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और दैट इज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, तो रीड अबाउट ऑल द डैम्स एंड स्पेशली SUMP, Siang Upper Multi-Purpose Project, why the people are opposing it, what is the government trying to do, what is the water bomb they're talking about, what is China's stake. Now they say that China is going to construct 160,000 megawatt dam at Yarlung Jangbo. तो जो tourism के ऊपर में you might be asked questions कि as a how to develop Arunachal as a tourist haven, if whether to make it very niche tourism, sustainable ecotourism or mass kind of tourism, तो इसके बारे में questions आ सकता है. And when you talk about tourism, you might get questions on PAP/RAP. What is PAP and what is RAP? PAP is Protected Area Permit and RAP is Restricted Area Permit. जो भी beyond inner line है, any foreigner coming to Arunachal Pradesh requires PAP. And restricted area permit, anything beyond PAP is restricted area permit, जहाँ पे आपको these are both for foreigners. जो area restricted है उसके लिए आपको PAP नहीं चलेगा, उस पर आपको RAP होगा. जब एरिया restricted है, once again I'm telling you, वहाँ पे आपको RAP चाहिए, restricted area permit. और जो भी foreigner आता है उनको PAP चाहिए. और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फॉर एग्जांपल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुछ वाइटल गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हो गया, बॉर्डर्स हो गया, जैसे लुमला हो गया, वहाँ पे अलाउड नहीं एनी फॉरेनर्स कैन गो. फॉर एग्जांपल एनी फॉरेनर कैन कम टू से टू जीरो, वहाँ पोली जा सकते हैं. लेकिन कोई अगर ताले वैली जाना चाहता है तो दे नीड रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट. सो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो देता है, इट इज़ टूरिज्म डिपार्टमेंट दे सकता है उसको. एंड जो भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट उसको होम मिनिस्ट्री दे सकता है. PAP देने का बहुत सारा है, DRCs वगैरह भी देता है. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट. PAP कौन कौन दे सकता है. एंड RAP में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओनली दी होम मिनिस्ट्री इज द राइटफुल अथॉरिटी टू इश्यू restricted area permit. So after tourism, let us come to AFRA 1978. Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978. It is a very hot topic. So इसके बारे पढ़िए. Hot topic and also very controversial. So this is something that you have to know. Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act. Details में जाने का we do not have time, but it is one important topic. Just go through it. You might be asked about the pros and cons of AFRA. तो accordingly you have to prepare. इसको आप थोड़ा सा 1978 में कब हाईलाइट हुआ था उसके बारे में बता दीजिए. और the fears of the communities, like say for example the Christians, why are they apprehensive about the AFRA, and what are the apprehensions of the indigenous communities with regard to the conversion taking place in Arunachal Pradesh. एक detailed balanced view आप ready करके रखिए एग्जाम के लिए. ठीक है, so that brings us to the women's right, a very burning issue all over. तो उसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 2021 को, साल 2021 को उन्होंने एक सबमिट किया था बिल, ए ड्राफ्ट बिल, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल एक सबमिट किया था. और ये बिल बहुत रेसिस्टेंस मिला फ्रॉम various corners and it was never tabled, it was never discussed. Fortunately or unfortunately, this is the question that you have to answer in the exam. So this might be asked to you.
why was it tabled or why was it not tabled, the pros and cons of the bill. ठीक है. And interestingly, a week back, Supreme Court, the Honorable Supreme Court, has passed an order which says that the tribal women needs to have equal share in their parental property rights, or in fact including their heirs. The heirs or the tribal women deserves equal share of their parental or ancestral property rights. 2021 को थोड़ा सा लोग याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन ने मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल, एक ड्राफ्ट बिल सबमिट किया था विच कुड नेवर बी टेबल्ड ऑन दी असेंबली, एंड जिसके ऊपर बात नहीं हुआ. सो यू माइट बी आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस, एंड आफ्टर सम ईयर्स, 4 साल बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया on heirs and equal property rights and ancestral property rights for the tribal women. तो इसके बारे में प्रिपेयर कीजिए. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल वुमेन रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स भी आता है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर अपॉन. स्पेशली देयर आर lots of women candidates, so please prepare on it. Very, very important in the light of recent Supreme Court judgment especially. So after the local issues, let us go to some national issues. तो यहाँ पे सबसे important है, let everybody knows, yeah, 3 major laws that then Indian Evidence Act, IPC and CRPC को नाम चेंज कर दिया गया है. तो इसका नाम जानिए, BNS, BNSS and BSA. इसके बारे पढ़िए. आई मीन इसका एब्रीवेटेड फॉर्म, फुल फॉर्म को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. एंड NDPS, व्हाट इज NDPS एक्ट, उसका NDPS का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं है, नेशनल नारकोटिक्स. आफ्टर दैट NDPS का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में. क्यों बहुत सारे NDPS केसेस, वाई देयर इज ए ग्रोथ इन द नंबर ऑफ ड्रग्स केसेस इन अरुणाचल प्रदेश, इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग. एंड इसमें है, जस्ट यू कैन नो द डिफरेंस बिटवीन stimulant and depressant. There are depressant drugs and stimulant drugs, and the differences between these drugs, you know, just इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. लाइक ब्राउन शुगर हो गया, कोकेन हो गया, hashish हो गया, and you have opium. You know, there are lots of opium found even in the TCL districts and including अंजाव, ठीक है. तो इस टाइप का सिंथेटिक ड्रग्स कहाँ से आता है और ये opioid drugs कहाँ से आता है, just read about it. I think this is a very pertinent question in Arunachal Pradesh. You can read about the rehab centers in Arunachal Pradesh, कहाँ का rehab centers है, the issues being faced in these rehab centers. So this brings us to the press, the fourth pillar. So you might be asked questions like, does freedom of press exist in India, the present day India, and if so, under what fundamental rights do they enjoy this freedom? So always remember, under Article 19 and Article 19(1), freedom of speech and expression, and Article 19(1) के तहत प्रेस को फ्रीडम दिया जाता है. So the other question might be, अगर इतना क्या प्रेस फ्री है, or is it not towing the line of the government in power? You might be asked question on that. If you say no, then you might ask questions like, why there is a rise of digital media channels like News Laundry, Lullen Top, and The Wire? Why are the people going towards the YouTube channels like the News Laundry, Lullen Top, and The Wire, and why not go to the popular TV channels, the Hindi channels, or the regional channels, or the English channels? And why are the podcasts so popular these days? Why are people going towards podcasts? So these type of questions might be asked. So you have to prepare your answers accordingly. A balanced view लेके चलना है. So just read about this rise of digital media channels, the reasons why there is a certain rise in digital channels, and why there is a downward spiral of the regular channels that we used to once watch. ठीक है, तो this is just a general question from my side. You might be asked question on that. So always try and prepare a balanced answer for all this. Get your details on your fingertips for yourself.
So this brings me to the pertinent question. So I'm trying to make some general questions for you. These are my own questions in some way or the other. So my question would be, is the government prioritizing infrastructural development over forest cover or over biodiversity? You might not have gotten my question, but that is my question. What I mean to say is that एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि क्या सरकार डेवलपमेंट को अपने फॉरेस्ट कवर या बायोडाइवर्सिटी के एक्सपेंस पे कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव डैम इश्यू. बिकॉज अगर डैम बनेगा तो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा. बट देन डैम इज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ऑल्सो रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज, फ्रंटियर हाईवेज बन रहे हैं. हाईवेज ऐसे नहीं बनेगा. तो हाईवेज के लिए तो आपको कटिंग करना होगा. कटिंग क्या करेगा? इंटरनेशनल बॉर्डर्स में या बॉर्डर से आगे जहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा एंड फाउना है. सो इज़ दैट नॉट अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर area, especially in a state like Arunachal Pradesh, which is one of the hottest and richest biodiversity hotspot in India. क्योंकि इसमें आप देखिए, there has been a forest bill passed recently which exempts, it has been passed in the parliament, which exempts any land within 100 kilometers from the Indian borders to be free from any conservation laws or from any forest conservation laws. 2023 को पास किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को. इसके तहत 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दी बॉर्डर्स के फॉर एनी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट, यू डू नॉट नीड एनी परमिशन और कंजर्वेशन लॉज. तो क्या ये इफेक्ट नहीं करेगा हमारा स्टेट को, स्पेशली जो कि अगर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर करने से तो ऑलमोस्ट बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आ जाता है. सो द अदर क्वेरी माइट बी ऑन द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश. इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन. APSSB के बारे पर आपको पूछा जा सकता है. अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के ऊपर में पूछा जा सकता है. तो जस्ट प्रिपेयर ए जनरल इन जनरल की एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है यहाँ पे एंड वन ऑफ द रीजन्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो दिस ब्रिंग्स अस टू वेरी पर्टिनेंट द नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन अरुणाचल प्रदेश. तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए सबको तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं दे सकता है. तो जिसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स एंड योजनाएं दे रहे हैं, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. तो उसमें द स्कीम्स लाइक द उन्नति स्कीम इज़ वेरी पॉपुलर एज ऑफ नाउ. एंड देन यू हैव द MSME, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस योजना है इसके ऊपर में. एंड देन यू हैव दिस दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना. सो लॉट्स ऑफ स्कीम्स इज बीइंग given by the government, and especially also there is a certain provision even for the women folk in the entrepreneurship in Arunachal Pradesh. तो these are some things that जो कुछ योजना है, जो भी गवर्नमेंट का योजना है, जस्ट उनका लिस्ट निकाल लीजिए आप लोग, उसके ऊपर में पढ़िएगा. at least 7 or 8 of them. I think this would be very handy for you, especially during the exams. ठीक है. After the entrepreneurship, जिसमें बहुत सारा लोन्स भी आपको देता है सरकार, स्टार्टअप्स के लिए आपको देता है, जैसे कि मुद्रा लोन वगैरह हो गया. तो जस्ट गो थ्रू इट. सो दिस ब्रिंग्स अस टू वन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे यू माइट बी आस्क्ड on sexual harassment at workplace. What are the provisions of sexual harassment of workplace? For the candidates, for lady candidates, you might be asked questions on if you are harassed sexually at a workplace, what are the provisions or what would you do? So it's very important that you know about the sexual harassment of workplace and its certain provisions. ठीक है. So after that, let us go to a bit international चलते हैं, after the local and state and national issues. तो दी जियोपॉलिटिकल के बारे में पढ़ता है, जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए. आपको पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज अबाउट द ड्रैगन. व्हेन आई से ड्रैगन, इट मीन्स चाइना. चाइना का जो एनसर्कलमेंट ऑफ द इंडियन
सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एनसर्कल करने का जो पॉलिसी को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. Just read about it. You might be asked question on this. China और इंडिया का geopolitics is very interesting. Of late there are certain changes जो हमारा बांग्लादेश में बहुत कुछ आजकल जो लेटेस्ट मोहम्मद यूसुफ का गवर्नमेंट आया है एंड दे आर ऑल्सो हैविंग सम इश्यूज. तो एवरी अदर डे वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होते रहता है बांग्लादेश में. सो रीड अबाउट बांग्लादेश, द जियो पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश विज़ वी इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो अमेरिका. मालदीव्स और इंडिया के बीच में आप लोग ने पढ़ा है लास्ट ईयर से कुछ इशू चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स होते रहता है स्पेशली रिलेटेड टू टूरिज्म. तो मालदीव्स के बारे पढ़ लीजिएगा ये सब. और ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी वी हैड सम इश्यूज, यू नो. म्यांमार और इंडिया के बीच में रिलेशंस ठीक थे, बट देन ओंग सान सू की का पार्टी और अभी का जो प्रेजेंट जनता के ऊपर में जनतास आर कॉल्ड थाटमडाउ इन म्यांमार. तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. रिसेंटली ड्रोन अटैक किया गया था ऑन वेरियस अंडरग्राउंड एलिमेंट्स इन म्यांमार ऑन द अल्फा कैंप्स. बहुत सारे लीडर्स ऑफ द अल्फा वेर ऑल्सो killed in the attack. So Myanmar और इंडिया का रिलेशन vis-a-vis यूजी एलिमेंट्स एंड चाइना के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा. इंडिया हैज़ ए वेरी गुड रिलेशन विद भूटान सो फार, बट चाइना का भी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस चल रहा है भूटान में. यू हैव टू रीड अबाउट इट. भूटान एंड अरुणाचल का बहुत अच्छा रिलेशन है. देयर इज़ अ टॉक ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम. देयर इज़ अ टॉक ऑफ direct chopper service from Bhutan to Arunachal Pradesh. इसका भी बात चल रहा है. तो just read about it and about the Indo-Nepal relationship. So कहीं ना कहीं these are all related to this geopolitics and string of pearls. तो इस even if you read about Maldives, Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal and Bangladesh, always read it vis-a-vis China, People's Republic of China. So this is very important. So one of the most pertinent important questions that one needs to know whether one prepares for exam or not, but this is very important to know our own geopolitics. And you might also be asked questions on use of drone. Drone technology is the latest technology. हर जगह ड्रोन का ही यूज़ हो रहा है. इवन इन एग्रीकल्चर यहाँ पे ईस्ट कामेंग में भी यूज़ किया गया था कुछ फर्टिलाइजर्स देने के लिए. इवन इन मेडिकल का फील्ड में भी यूज़ किया गया है अरुणाचल में ड्रोन. तो यूज़ ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड artificial intelligence in agriculture is going to be very, very important. There are lots of agriculture students, so read on drone and AI in agriculture, horticulture and in other fields. So this brings us to agriculture, and you can also read about the genetically modified crops like BT cotton, like BT brinjal, and what is mulching, what is NPOP. NPOP stands for National Program for Organic Productions. MOVCD is very successful in Arunachal Pradesh. Or MOVCD stands for Mission Organic Value Chain Development Projects. ये across Arunachal में ये कर रहा है अभी. And what is NLM, National Livelihood Mission, in terms of livestock, vertical farming and hydroponics का ऊपर में differences, because बहुत सारा hobbies में आप लोग ने लिखा होगा. My hobby is farming and gardening. So you might be asked questions on vertical farming and hydroponics के ऊपर में questions पूछा जाएगा. Mulching के ऊपर questions पूछा जाएगा. ठीक है. तो accordingly you have to prepare your own answers. These are not very tough things. If you go through your books or if you go through your internet, you will find about vertical farming, about hydroponics, about National Livelihood Mission. ठीक है. So we have read about it. And after this oil palm के ऊपर में बहुत सारा अभी focus there a government, a lot of focus on oil palm. तो oil palm को aggressively market कर रहा है government. But there are certain conservationists who oppose the wide scale plantation of oil palm. But then since government is pushing hard, this is something that we need to look forward to. तो oil palm का pros and cons के बारे में पढ़िए. Why is it required? Because ये cash crop है जो which can give a lot of cash to the farmers. ठीक है. तो oil palm के बारे pros and cons के बारे पढ़िए. And the way it can affect and impact the lives of the farmers के ऊपर पढ़िएगा. Why is bamboo called the green gold? ठीक है. अभी bamboo अभी agriculture department के अंदर आ गया. पहले it used to come under the forest department. Now bamboo has come under the agriculture department. So why bamboo is called the green gold? And the capacity of Arunachal Pradesh to produce one of the largest quantity of
bamboo, it can also be studied upon. तो इसके बारे में पढ़िए, very important product bamboo. Government is giving a lot of push on bamboo and oil palm कि bamboo से क्या क्या बनाया जा सकता है and how it can help the locals, the indigenous people to improve their per capita income. So the government is veering away from the traditional मतलब rice, paddy, wheat and things like that. They are opting for oil palm, जो cash crop, bamboo type का, जो which our people are used to. तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा. This is very important. Read about Article 371H. It relates to Arunachal Pradesh. ये very very important. तो Article 371H के बारे में मेरे को बताने का नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. Which gives गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर का राइट कहाँ से मिलता है, पावर कहाँ से डिराइव होता है. सो वाई others indigenous people are asking, a group of people are asking कि 371H को हटा के 370A जो नागालैंड का है वो होना चाहिए, या 371G जो मिजोरम का है. मिजोरम और अरुणाचल से साथ में ही शेड्यूल डे मिला था, तो उनका G है, हमारा H है और नागालैंड का A है. तो जैसे कि हम इधर A या G का हम लोग को भी राइट्स मिलना चाहिए, नॉट H. So because it refers to the provisions refers to the ownership of land and resources. So 371H, A और G को आप पढ़ लेगा तो आपको इसका आंसर खुद आ जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. This brings us to the sixth schedule demand by Ladakh. You must have read about 370 and 35A. 370 और 35A को अभी हटा दिया गया है जिसके वजह से, एंड वी हैव नाउ JNK एज ए यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख एज ए UT. तो 370 और 35A के बाद में जो 6 शेड्यूल डिमांड कर रहा है लद्दाख, वाई आर दे डिमांडिंग 6 शेड्यूल? अर्लियर उनको राइट था, अभी राइट नहीं है. सो 6 शेड्यूल जो लद्दाख का डिमांड है और 371H में क्या रिजेम्बलेंस है? इफ़ यू रेड अबाउट द 6 शेड्यूल डिमांड और 371H को 371H को जो डिमांड कर रहा है कि चेंज करो, तो इसमें आपको अगर आप यू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑन द डिमांड्स, यू विल get your answers and you have to prepare your answers accordingly. So with regard to economics, you might be asked questions on what's the difference between gross domestic product and gross national product. इसके बारे में पढ़ लीजिए, सिंपल है. and just read about inflation and world economy का present condition कैसा है, whether it is on a downward spiral or on a upward gradient. तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा. ट्रम्प का लेटेस्ट पॉलिसी विज़ावी यूरोप, विज़ावी ऑस्ट्रेलिया, विज़ावी चाइना, विज़ावी इंडिया, क्या कितना उन्होंने टैरिफ लगवाया है अगेंस्ट ऑल दिस कंट्रीज. तो उसके बारे यू जस्ट गो थ्रू इट. देन ये वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेजेंट कंडीशन कैसा है, ग्रोथ कैसा है. 2.3% से 2.8% के बीच में ही ग्रोथ है. इंडिया का ग्रोथ कितना है? इंडिया का अराउंड 6.3% का बता रहा है एज पर IMF, जो नेशनल मॉनेटरी फंड के. और इंडिया एंड UK का लेटेस्ट जो टैरिफ के ऊपर में उन्होंने कुछ साइन किया है, एग्रीमेंट किया है. जो रीड अबाउट इट जस्ट नेक्स्ट 4 और 5 डेज में जो आने वाला है एग्जाम से पहले, जस्ट गो अबाउट इट. एवरी डे का जो वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे आप पढ़िए तो यू विल हैव बेटर आइडिया. एंड VKB का बारे मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बहुत सारा VKB स्टूडेंट्स है, और अगर DAF को देखा जाए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या आपका रेज्यूमे में VKB का बारे बहुत लिखा होगा कि मैं VKB से इतने तक क्लास से पढ़ा हूँ. तो यू माई सिंस इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कूल VKB ऑल ओवर. तो टोटल नंबर ऑफ VKBs कितना है, यू माई जस्ट बी आस्क्ड. तो नो दैट टोटल नंबर ऑफ VKB इज अराउंड 42 एज ऑफ नाउ. और हु एस्टैब्लिश्ड VKB? VKB वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एकनाथजी रानाडे. What's the name? Eknathji Ranade in the year 1972. As an alumni, as a VKBian, I know that Eknathji Ranade established VKB in the year 1972 and VKB Share. And VKB Share was the first VKB established in Arunachal Pradesh. 1977 में first VKB established हुआ था. Share, Oyan and Balijan. ये 3 एक ही साल में इस्टेब्लिश हुआ था. ओयान, शेर एंड बालीजान. एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शेर होना चाहिए जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था, या बालीजान, बट आई गो फॉर शेर. तो ये जस्ट याद कर लीजिए इन केस फॉर VKB स्टूडेंट्स.
आई एम टेलिंग बिकॉज दिस माइट जस्ट बी आस्क्ड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये. एंड जो एजुकेशन पॉलिसी, जो ईयर ऑफ यूथ इस साल को डिक्लेयर किया गया है, तो वाई ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया गया है, लास्ट ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया गया था. एंड so when I talk about education, it's very important that you talk about new education policy, that you know about new education policy. So you might be asked questions on new education policy. There might be many from the teaching background who are appearing for this Viva, who are teachers or who are lecturers. So you will be asked questions on what are the new education policy. So just go through it. You are expected to know about it. So just read about Arunachal Pradesh building bylaw 2019. It is available. Arunachal Pradesh building bylaw 2019 is very important. इसके बारे स्पेशली फॉर इंजीनियर्स एंड ऑल, इसके बारे थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहा है ना. मिडिल ईस्ट के बारे तो बताने का जरूर नहीं, आपको सबको पता होगा. इजराइल विज़ावी लेबनान, इजराइल विज़ावी पैलेस्टीन इन गाजा, इजराइल विज़ावी ईरान. तो इसके ऊपर में आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या इश्यूज हो रहा है. यू कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट दी रशिया एंड यूक्रेन वार. ठीक है, अभी लेटेस्ट कैम्बोडिया एंड थाईलैंड के बीच में कुछ इश्यूज हो रहा है. तो जस्ट रीड अबाउट इट एवरी डे. इफ यू गो थ्रू योर न्यूज़पेपर्स यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो इट्स वेरी क्वेश्चंस ऑन इंडियन डिफेंस एयरक्राफ्ट कौन कौन सा है. तो तेजस इज इंडिजिनियसली बिल्ड एंड वी हैव मिग द रिलायबल सुखोई एंड वी हैव राफेल. तो इन अभी जो रिसेंट जो अटैक हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुआ है, तो यू माइट बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द इंडियाज प्रिपेयर्डनेस ऑन द एयरक्राफ्ट्स. व्हाट इज COP29 इज वेरी इंपॉर्टेंट. COP stands for Conference of Parties 29. ये कहाँ पे हुआ था? 29 टाइम हुआ पर कहाँ पे हुआ? 2024 को ये हुआ था अजरबैजान एट बाकू. बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. अजरबैजान में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. इट डील्स ऑन क्लाइमेट चेंज. तो फर्स्ट अर्थ समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो एट ब्राज़ील 1992 को. 1992 को फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो को ब्राज़ील में, और वो फर्स्ट था. और ये 29th है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गो थ्रू इट. टू डिजिटल इंडिया. तो डिजिटल इंडिया क्या है, कब से शुरू हुआ? 2015 के बाद डिजिटल इंडिया शुरू हुआ. 15 याद करने से आप 14 को बीजेपी गवर्नमेंट आया था, 14 के बाद 15 से शुरू हो गया द पुश फॉर डिजिटल इंडिया. क्या क्या डिजिटल इंडिया? फॉर एग्जाम्पल आधार, UPI, ठीक है, वैक्सीनेशन, कोविन. तो these are the examples of digital India which has been very very popular and hugely successful. तो आप you might be asked question and what is DigiLocker? DigiLocker माने जब आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिजिटली आप स्टोर करते हो. What is मेघराज? इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है ऑन डिजिटल इंडिया. तो why is it a success और क्या क्या है इसका सक्सेस स्टोरी का पीछे में. ठीक है. एंड दैट दिस ब्रिंग्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो इसरो के बारे में पढ़ लीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसने क्या क्या काम किया है पास से लेके अभी तक. अभी लेटेस्ट है इसरो के बारे. इफ़ यू रीड व्हाट इज स्पेडेक्स. स्पेडेक्स इज इम्पोर्टेंट. स्पेडेक्स के बारे पढ़ लीजिए. यहाँ पे 2 सैटेलाइट को डॉकेटिंग करता है वो लोग. तो इसके बारे आप लोग स्पेडेक्स क्या है 3-4 लाइन्स आप लोग पढ़ लीजिए स्पेडेक्स के बारे में. एंड व्हाट इज गगनयान मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. तो गगनयान मिशन क्या है और ये कब होने वाला है इसके बारे में पढ़ लीजिए. एंड नंबर 3 शुभांशु शुक्ला. शुभांशु शुक्ला कौन है, कौन सा वो डिफेंस फोर्सेस से आता है और उनका लेटेस्ट अचीवमेंट क्या है उसके बारे. एक्सियम क्या था, और शुभांशु शुक्ला के बारे पढ़ लीजिए. एक्सियम 4 मिशन के बारे पढ़ लीजिए. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इसरो. These are 3 things that you cannot dare to forget. So recently there has been some changes that has taken place, like the Vice President of India, Mr. Jagdeep Dhankar ji, had voluntarily resigned. So the article is Article 67A, not capital but small letter A. Crash. एयर इंडिया क्रैश हुआ था. वो एयर इंडिया का नाम क्या था फ्लाइट का, कहाँ से कहाँ जा रहा था उसके बारे. यू माइट बी आस्क्ड व्हाट माइट हैव बीन द प्रोबेबल रीजंस फॉर द क्रैश, और क्रैश कहाँ हुआ था. तो जस्ट रीड अबाउट इट.
So there are certain demands by America to Greenland और India और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप अभी डिमांड क्यों कर रहा है अमेरिका ग्रीनलैंड को, एंड कनाडा और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप, कनाडा एंड अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप तो इस टाइप के इश्यूज़ के ऊपर मैं जस्ट गो थ्रू विट वंस। एसएसबी है तो एसएसबी किस किस को वो करता है, गार्ड करता है, वो करता है इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल बॉर्डर को। आईटीबीपी मीन्स इंडो तिब्बत, इट्स क्लियर, इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर को। और ये असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स, और ये नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली है, स्पेशली म्यांमार का बॉर्डर में इसको डिप्लॉय किया जाता है स्पेशली फॉर ऑपरेशनल पर्पस। और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद आपको पता है ये। इसके बाद में है CRPF, दिस इज़ दी लार्जेस्ट, और ये है लार्जेस्ट CAPF फोर्स, और ये डिप्लॉय होता है फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और लास्ट में हो गया आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और ये CAPF स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, ठीक है। पहले पैरामिलिट्री बोल रहा था, अभी इसको CAPF बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एंड इट कम्स अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आर्मी कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स कम्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई सीरीज। टोटल 4 सीरीज़ बनाए मैंने आफ्टर ऑफिस। मैंने बैठ के आप लोगों को बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स ऑन 38, उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट इट, तो 4 days में मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड आई जस्ट होप दैट इट हेल्प्स यू। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे एज मच एज आई कुड एज पर माई ओन लिमिटेड नॉलेज। और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, रिसर्च के समय भी नहीं था, तो 1-2 जगह में थोड़ा शॉर्ट कमिंग्स आया होगा, but I tried my best, and I understand that at this point in time you all require that brief and concise lectures। जो पढ़ने का समय नहीं है तो जस्ट सुन के आप कुछ आपके दिमाग में, दिल में आप रख सकते हो। This is what I try to do for all the aspirants। One thing that I realized is that why I started this series, because हमारा लोकल नॉलेज काफ़ी पोर है, और जो भी डाटास एंड फैक्ट्स जो अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट और द यूट्यूब बहुत गलत है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, मैं नहीं क्लेम करता हूँ कि मैं जो बोला वो सही है, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंसेस है, और मैक्सिमम गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैंने बात किया, तो ये ऑथेंटिक मोर और लेस बहुत जगह में ऑथेंटिक है। तो वंस अगेन द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर जो भी मैंने पढ़ा है उससे आपका थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है, और कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाता है एग्ज़ाम में और वो आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। सो दिस इज़ ए one time in a lifetime opportunity for all of you, and I wish and I convey my best regards to all of you, my best wishes to all of you for this upcoming Arunachal Pradesh Public Service Commission personality test. I know you will give your best. Once again, my best wishes. God bless you. Thank you.